ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 60 باب 1 تا 6 آیات۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ پہنچا ہے اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گی۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے۔ تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی ثروت تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی۔ اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی، یعنی مدیان اور ایفا کی سانڈیاں۔ وہ سب سبا سے آ کر سونا اور لبان لا رہے ہیں، وہ خداوند کی حمد کے مبشر ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، کریں گے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس متی۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم، یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو، وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر
उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसे नजर गुजराना और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदीस के पास ना जाएं, वो दूसरी रात से अपने मुल्क को वापस चले गए। पाक अंजील के वसीले से हमारी खताएं माफ हों। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया ईद ज़हूर अल मसीह मना रही है। ईद ज़हूर क्रिसमस के बाद एक बड़ी ईद है। इस ईद को मजूसियों की ईद भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी जुबान में एपिफनी कहते हैं, जो यूनानी जुबान के लफ्ज एपिफनिया से माखूज है, जिसका मानी इंकशाफ करना, खोलना, आश्कारा करना, अया करना या जाहिर करना है। ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस से इक्तबास की हुई मजूसियों की कहानी पर मबनी है, जिन्होंने मसीह की पैदाइश की शब आसमान पर एक चमकदार सितारा देखा और उसकी रहनुमाई में बैतलहम की राह ली। ईद ज़हूर को मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफ़तों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। मसलन यौम पैदाइश अलमसीह, 3 बादशाहों का दिन और 12वीं शब। यूनानी लफ्ज़ मागोस कदीम फारसी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका तर्जुमा मजूसी है। मजूसी इब्तदा में मादाइयों में से एक मजहबी फ़िरका या ज़ात थी। मादाई हज़रत नूह के सबसे छोटे बेटे याफत की नस्ल से एक कौम थी, जिसका जिक्र हम तकवीन की किताब 10 बाब और दूसरी आयत में पाते हैं। वो अपने मजहब की रसूमात और अलूम से अच्छी तरह वाकिफ थे और नजूम, फालगिरी और ख्वाबों की ताबीर में खास दस्तरस रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें दानिशमंद कहा जाता था। जब फारस के बादशाह ने मादाइयों को अपने मुतई किया, तो मजूसियों ने पारसी मजहब अपना लिया और अपने पुराने मजहब की बातों को नए मजहब में शामिल कर लिया। मसलन इल्म नजूम, ख्वाबों की ताबीर और जादूगरी। जब शाह बाबल ने यरूशलेम का मुहासरा किया, तो वो मजूसियों के सरदार को अपने हमरा ले आया, जिसका जिक्र हम इर्मिया नबी के सहीफे उसके 39 बाब में पढ़ते हैं और फिर दानियल नबी की किताब उसके 5वें बाब में। मेरे अजीजों, ईद ज़हूर दर हकीकत 4 वाक़यात की यादगार है, यानी मसीह खुदावंद की पैदाइश, मजूसियों की खुदावंद यसु मसीह से मुलाकात, मसीह खुदावंद का बपतिस्मा और मसीह खुदावंद का पहला मोजज़ा। इन चारों वाक़यात में से हर वाक़या इंसानों के लिए खुदावंद के जलाल का मजहर है। मसीह खुदावंद के बपतिस्मा के मौका पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है। खुदा की आवाज सुनाई देती है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब। काना गलील की शादी में मोजज़ा मसीह की अलूहियत को आश्कारा करता है। पैदाइश अल मसीह पर फरिश्ते मसीह की गवाही देते हैं। गडरियों को मसीह खुदावंद की बशारत दी जाती है और मजूसियों की बच्चा यसु से मुलाकात की अलूहियत गैर इकवाम पर जाहिर होती है। मेरे अजीजों, मजूसी आज की ईद के नहायत अहम किरदार हैं, जो गैर इकवाम से ताल्लुक रखते थे। आज के दिन खुदा ने हकीकी बादशाह को उन पर मुनकशिफ किया है, जिसका वादा उसने बनी इसराइल से अंबिया की मार्फत फरमाया था। वही बादशाह जिसका इंतजार आलम कुल कर रहा था, आज बैतलहम की सरजमीन पर बच्चा यसु की सूरत में इस धरती पर आता है। मशरक से आने वाले ये मजूसी
इल्म और हिकमत के शायक इंसान थे। जब खुदावंद के जलाल ने बैतलहम की पहाड़ियों को बकाए नूर बनाया, उस रात इन मजूसियों ने आसमान में अजीब रोशनी देखी, और जब रोशनी मध्यम हुई तो एक बड़ा रोशन सितारा आसमान में नमूदार हुआ। बिलाम नबी की पेशनगोई, अदद की किताब उसके 24वें बाब में हम पढ़ते हैं कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा। बैतलहम का यह सितारा ना सिर्फ एक तारीखी वाकया है, बल्कि इस बात का ऐलान भी है कि दुनिया में उस हस्ती का जन्म हुआ है जो तमाम इकवाम के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए मंबा नूर है, जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। यूहन्ना पहला बाब 9-10 आयात। मजूसी जब सितारे की रहनुमाई में उस घर में दाखिल हुए जिसमें बच्चा यस्सु, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ मौजूद थे, तो वो नहायत खुश हुए। उन्होंने खुदा की हजूरी का तजुर्बा किया और यस्सु के आगे गिरकर उसको सजदा किया और मशरकी दस्तूर के मुताबिक उसे तहाइफ पेश किए, यानी सोना और मुर और लुबान। और ये पेशनगोइयां तकमील पाई। शाहाने तरशीशो जजायर नजरें गुजरानेंगे, शाहाने अरबो सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसे सजदा करेंगे। जबूर 72 10 11 आयात। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं, वो खुदावन की हमद के मुबश्शिर हैं। इशाया 60 बाब 3-6 आयात, जैसा कि हमने पहली तलावत में भी ये सुना है। जो तहाइफ खुदावंद यस्सु मसीह को नजर किए गए, वो एक बादशाह के शायान शान थे। सोने से मसीह का बादशाह होना मुराद है, और लुबान मसीह के कहने आजम होने की तरफ इशारा है, जैसे कि वो मलकी सादक के रुतबे का दायमन काहिन है और मुर उसकी मौत की निशानदही करता है। इन तोहफों से उन दानिशवर मजूसियों ने ऐलान कर दिया कि यस्सु एक हकीकी बादशाह और काहिने आजम है, जो अपनी मौत की कुर्बानी से सारे जहां का मुनज्जी होगा। मेरे जीजो, बैतलहम के सितारे के रूप में मसीह का नूर जो मजूसियों और सब कौमों पर जाहिर हुआ है, वो आज भी ना उम्मीदी और मायूसी की घटाओं को दूर करके इंसानों पर चमकता है। यीशु मसीह की पैदाइश और ईद ज़हूर हमारे सामने इलाही मोहब्बत के भेद का इंकशाफ है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे के तजस्सुम, उसकी मौत और क़यामत के जरिए इंसानों को अपने साथ अब्दी जलाल और अपने नूर में चलने की राह हमवार कर दी है। ईद ज़हूर हमारे ईमान की एक बड़ी ईद है। ये ईद हमसे तकाजा करती है कि मजूसियों की तरह हम भी मसीह को पाने की जुस्तजू करें। मजूसी जो बहुत दूर दराज से सफर करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आ पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ हेरोदीस है जो चंद मीलों के फासले पर भी यीशु की तरफ जाने से कासर है। वो यीशु की अलूहियत को जानने से कासर है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए मजूसी रोल मॉडल हैं, जिन्होंने खुदावंद की अलूहियत को पहचान लिया है और खुदावंद को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है। जिस तरह मजूसी अपने खानदानों और हम वतनों के लिए मसीह के पैगाम्बर बन गए, हम भी मसीह की खुशखबरी के मुबश्शिर बन जाएं। मेरे जीजो, खुदा हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आप सबको ईद ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। यसु पैदा होया जग दे बचान लई, यसु पैदा होया जग दे बचान लई, जग दे बचान लई मुक्ति